Hello everyone. Now try to solve this question. Question number first. Set A has m elements and set B has n elements. If the total number of subset of A is 212 more than, okay, 212 more than the total number of subset in B, then the value of m, okay, m there is dot n, just a second. Question में क्या कुछ error है यहाँ पे? उसे m into n है, okay, it is m into n. मुझे लगा था कि शायद उसने रेशियो पूछा है. So m is to n is dash. Okay, you have to find out the product of m n. So before that you have to calculate the value of m and n. So just try and solve. क्या आ रहा है, नहीं आएगा तो हमें बताइए, मैं करूंगा, ठीक है. First attempt this. What is given here? कि set A has m elements. Okay, and set B has n elements. If the total number of subset in A is total number of subset of A is 112 more than the total number of subset in B. So we have one relation here. What is that relation? Ki subset of A, number of subset of A is equal to what? 112 more than 112 plus, okay, number of subset of B. This is the relation that, this is the equation that we have in the question. Okay, now but यहाँ पे जो मुझे एक चीज फाइंड करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा what how many subset we have in set A. उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि A has m element. नंबर ऑफ सबसेट इन A कितना होगा? m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितना हो जाएगा? Since A has m element, so number of subset of A will be 2 to the power m, and number of subset of B कितना हो जाएगा? Since B has n element, so total number of subset in B will be 2 raised to n. मैंने फॉर्मूला सेट्स को पढ़ाते थे, जब बेसिक्स पढ़ा रहा था उस टाइम पे बताया था आपको. So if you put the formula here, 2 to the power m equal to 112 plus 2 to the power n. Now can I take this 2 to the power n that side? So 2 to the power m minus 2 to the power n equal to कितना हो जाएगा? 112. Yes. Now from here, can I take 2 to the power n common? 2 to the power n common ले लेता हूँ, क्या होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? 2 to the power m divided by 2 to the power n माइनस यहाँ कितना होगा? 1 इक्वल टू 112. अब बताओ यहाँ पे किसको समझ में आया है, किसको समझ में नहीं आया? Like suppose if you have 8 minus 3 and I want to take 3 common, तो मैं जब 3 कॉमन लूंगा तो 8 को डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. टेकिंग कॉमन मींस डिवीजन. आप इनको यदि मल्टीप्लाई करके देखो तो यही आएगा. 3 into 8 by 3 is 8, 3 into 1 is 3. Means if you are taking something common, what you have to do, you have to divide each and every term by that term. तो मैं क्या करूंगा? 2 to the power n को मैंने कॉमन लिया है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2 to the power n को डिवाइड कर दूंगा दोनों पार्ट में. कोई प्रॉब्लम है इसमें? एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? हेलो, कॉमन समझा सबको? सबको कॉमन क्लियर? Okay, common means basically what? The division with the same term. हर एक टर्म को आपको सेम टर्म से क्या करना पड़ेगा? जिसको कॉमन है उसे डिवाइड करना होगा. Now if you solve this, you will get 2 to the power in the bracket. इसको यदि सॉल्व कीजिएगा कितना होगा? बेस सेम है तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो m minus n minus 1 इक्वल टू 112. अब 112 को ना 2 के फैक्टर में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल्स है ना. यहाँ पे 2 के पावर में कुछ होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा. तो 112 का आप क्या करो, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, जो आप लोग इसमें 8th वगैरह 9th वगैरह में पढ़ते हो, सारे फैक्टराइजेशन निकालो. तो पहले 2 से लगाओगे, ठीक है, फिर क्या आएगा? 2 के बाद 56, फिर 2 कितना, 2 से लगाओ कितना आएगा? 28. आफ्टर दैट 2 से अप्लाई किया तो 14, देन अगेन 2, देन कितना आ जाएगा ये? 7. So basically can I write down 112 equal to what? What is 112 equal to? 1 2 3 4 2 to the power 4 into 7. So can I write down this is equal to what? Basically 2 to the power 4 into 7.
नाउ दिस टू फैक्टर इज इक्वल टू दिस, मतलब देखो यार 2 टू द पावर n है यहाँ पे, ये तो इफ दिस लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। यदि मैं यहाँ से इक्वेट करूंगा 2 टू द पावर n को 2 टू द पावर 4 से, then and if I equate with this 2 to the power m minus n minus 1 को 7 से क्या मिलेगा मुझे? From here I'll get n equal to 4, yes, and from here I'll get 2 to the power m, n का वैल्यू तो 4 आ गया है, equal to 8, yes, 7 plus 1 8 हो जाएगा ना। 8 is basically what? 2 to the power 3, the 2 to the power m minus 4 equal to 2 to the power 8 means what? Sorry, 8 equal to 2 to the power 3। अब यदि आप इक्वेट कीजिएगा कितना मिलेगा? m minus 4 equal to 3 and the m equal to 7। And what was the question? Question was what is the value of m into n? So if you talk about m into n, that will be the 28, 7 into 4, the answer is 28। Okay, this was asked in the September 6 2020। okay, ये आपको आया था JEE में। okay, got this? Any confusion at any point, ask me right now। yeah I cannot equate this equal to the odd. This is the even number, so I cannot equate it with the odd number. That's why I have to equate this with this and this to this। Clear? Because this is what even number, minus करेंगे 1 तो क्या मिलेगा? odd number। तो ये odd number इनके साथ equal हो जाएगा और ये जो even number है इनके साथ equal हो जाएगा। Now from here, if you equate, you will get n equal to 4। अब फिर इसको solve करोगे तो you will get m equal to what? 7। Are you clear with this? Yes, sir. Try to solve this question, question number 2। ये जनवरी 2019 में JEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेट S, सेट S डिफाइंड यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, द नॉन एम्प्टी सबसेट्स A of S such that the product of element is such that the product of elements in A is even is। अब इनको कैलकुलेट करके देखिए क्या रहा है, थोड़ा सोचिए और बताइए। ओके, तो forget about this question, let's assume that there is one set X। okay, उसके एलिमेंट्स है 1 and 2। इसके यदि मैं पूछूंगा all possible subsets are, तो सबसेट्स कितने होंगे? that will be the 1 2, after that 1 2 and then 5, basically 2 to the power 2, दो एलिमेंट है 2 to the power 2 हो जाएगा। But if I talk about what are the non-empty subsets, non-empty subsets, बताइए क्या होगा फिर? That will be the 1 2, okay, 1 and 2, these are the one non-empty subset, it will be the 2 to the power 2 minus 1। सही है, इतना तो कोई प्रॉब्लम है इसमें। यदि मुझे ऐसा पूछा जाए कि द नंबर ऑफ, मैं यदि थोड़ी देर के लिए ऐसा इसमें से यदि सेट S है 1 से लेकर के 100 तक, तो यदि मैं बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 100 minus 1, this will be the non empty subset। बस एक 5 तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब उसमें एक कंडीशन और दिया है कि वी हैव टू कैलकुलेट, ओके, ये वैसा चीज है जिसमें जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज व्हाट? इवन। ओके, हमें इवन चाहिए। तो इवन मिलने के चांसेस कब कब होते? इवन मिलने के चांसेस क्या होगी बताओ? इधर यू विल गेट द व्हाट? द बोथ नंबर आर इवन, प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर्स आर इवन। होता कि नहीं होता? ये होता ना, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स आर व्हाट? इवन। अच्छा, एक भी नंबर इवन हो गया, बाद बाकी सब ऑड हो गया, तो भी क्या होगा? इवन हो जाएगा, तो भी इवन होंगे, इवन होएगा। तो मिनिमम एक नंबर हमारा क्या चाहिए? इवन होगा। अच्छा, ऑड किस सिचुएशन में मिलेगा? ऑड किस सिचुएशन में मिलेगा? जब सारे नंबर ऑड हो जाए, जब सारे नंबर ऑड हो जाए। तो कितने नंबर, इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ ऑड्स, और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, और मान के चलो हम एक ऐसा सेट Y लेते हैं, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। तो कितने तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर में कितना आएगा? बोलो, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट तक कहां तक जाएगा?
99 तक जाएगा। ये टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर यहाँ पे कितना 50 नंबर है यहाँ पे 50 मतलब यदि ऐसा 2 टू द पावर 50 सेट ऐसा बनेगा जिसमें प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑड रहेगा। सोच के देखो, मतलब यदि 1 3 का मैं पेयर बनाता हूँ, 1 5 का बनाता हूँ, 1 का पेयर, 3 का पेयर, मतलब यदि तुम्हारे पास 50 नंबर्स है तो टोटल नंबर ऑफ ऑड सबसेट्स कितना हो, 2 टू द पावर, अच्छा टोटल नंबर ऑफ ऑड सबसेट 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी भावना को, 2 टू द पावर 50 हो जाएगा। इसमें भी मुझे क्या चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ व्हाट नॉन एम्प्टी ऑड सबसेट 50 -1 2 टू द पावर 50 -1। समझा। अब क्या चाहिए था मुझे, क्या चाहिए था वैसा सबसेट चाहिए था, नॉन एम्प्टी सबसेट जो इवन हो। तो फॉर इवन नॉन एम्प्टी सेट्स सबसेट्स कितना हो जाएगा, तो टोटल जितना है उसमें से माइनस करूंगा किसको, ऑड वाले को। तो टोटल हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट था कितना था, 2 टू द पावर 100 -1 द माइनस, और ऑड वाला कितना है 2 टू द पावर 50 -1, तो 2 टू द पावर 100 -1 -2 टू द पावर 50 +1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट 2 टू द पावर 100 -2 टू द पावर 50, तो 2 टू द पावर 50 को बाहर निकाल लो, कितना बच जाएगा 2 टू द पावर 50 बचेगा इस यहाँ पे -1, and this is the answer. Okay, and if you look at the options, then we have the B as the right answer. Everyone clear with this? अब इसमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी पूछो मुझे। जैसे मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि रिया को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। यस रिया, तुम भी बताइए, कहीं पे कंफ्यूजन है? नहीं सर। Everyone clear with this? Gauri, clear with this? यस सर। सर आपने यही वाला क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से आप कोई भी सबसेट बनाओगे ना ऑड मिलेगा। जैसे मान के चलो 1 बनाओगे ऑड आया, 2 बनाओगे ऑड, सॉरी 2 नहीं 3 बनाओगे ऑड आया, फिर उसका 5 बनाओगे ऑड आएगा। ओके, यदि मान के चलो 2 टर्म का लेते हो तो भी ऑड ही मिलेगा। जैसे 3 और 5 लेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड मिलेगा। ओके, तो सिर्फ यही एक 50 नंबर है ओके जिनका सारे यदि हम सबसेट्स निकालेंगे ना तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ऑड रहेगा, इसलिए हमने इतने सबसेट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और जो बाद बाकी रहेगा दैट विल बी द व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ the even non-empty subset. Okay, so आज के लिए इतना ही। Bye guys, have a good day.